हालेलुया। ये टेस्टिमनी हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे, ये सिस्टर के ब्रदर के मुंह से हम सुनेंगे। अपना नाम बताइए, कहां से आए, क्या प्रॉब्लम थी, आपकी गवाही क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। उसकी जो सांस, उसके बाद उसकी जो सांस वाली आपने कहा जो नली है वो होर सिकुड़नी शुरू हो गई होती। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਟਿਕਿਓਸਮੀ ਟਿਊਬ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟਿਕਿਓਸਮੀ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मतलब फेफड़े नहीं बने थे, उसके बाद जो सांस वाली नाली थी वो भी सिकुड़ गई इसकी। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਿਓਸਮੀ ਟਿਊਬ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ। कौन है अंदर? फुल दिखाओ इसको। ये ट्यूब आप सक्शन करते थे, ये सक्शन कर रहे हैं अभी आप? ਹਾਂਜੀ। इससे क्या होता था? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਈਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਰੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕੱਢਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और आपने कहा कि ये पेनफुल प्रोसेस है। ਹਾਂਜੀ, ओह जीसस। ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ। आपने कहा कि कई बार उसके मरने जैसी हालत होती थी जब ये सक्शन आप उससे अपने हाथ से करते थे। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप आर्टिफिशियल घर में रखते थे, क्या लगाते थे इसको? ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। 3-4 ਵਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਘਰੇ। कितनी देर चला ये लगातार? कितने खर्चा हुआ आपने लिखा यहाँ? 34-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। और तब भी डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। क्योंकि अगर फेफड़े बनने होते तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में बन जाते। ਹਾਂਜੀ, अगर वो नहीं बन रहे 2-3 महीने, 4, 5, 6, 7, वो साल के करीब हो गया, तो उसको इसी सहारे आप सांस देते थे, सक्शन पाइप से उसकी इन्फेक्शन बाहर निकालते थे। ਹਾਂਜੀ, और उसको आर्टिफिशियल सांस देते थे, और जो उसकी सांस वाली नाड़ी वो भी सिकुड़ गई थी। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਹੀ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। कैसे फिर शुरुआत हुई आपकी एक्सपीरियंस की जो हेवनली परमेश्वर ने आपको दिया? 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਰਬ ਹੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਗਲੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦਿਆ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦਿਆ ਪਈ ਸੀ। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौज से हो यीशु के हुजूर, बोलो करेगा जरूर। आपने जब वो ऑयल लगाया और उसको चेक किया सेम टाइम? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसके बाद जो इसके पाइप वगैरह जो लगी थी, आप डॉक्टर के पास तो गए ही होंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਘਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਪਾਈਪ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ ਪਾਈਪ ਇਹਦੀ।
डॉक्टर क्या बोलते हैं इसको देखकर? ਡਾਕਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आपने लिखा कि डॉक्टर शॉक्ड थे। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ फादर को मोबाइल देना माइक। फादर साहब क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को? लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आओ, मुझे बहुत विश्वास है और मैं मसीह लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं जो बोलो, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हूँ यीशु के हुज़ूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मामा को माइक देना। जो अभी भी बहनें हैं ऐसी जिनके बच्चे बीमार हैं या खुद बीमार हैं, आपने तो ये अपने ये छोटा बच्चा तो उसको तो एक रोता भी है तो माता पिता को कुछ होने लगता है, तो आपने तो 10 महीने इसको जीते मरते देखा है। क्या एडवाइस है आपके दिमाग में, दिल में, जो आप माओ को देना चाहती हैं, पेरेंट्स को देना चाहती हैं, लोगों को देना चाहती हैं? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਸਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ हालेलुया हालेलुया। मैंने ये मिरेकल्स हर हफ्ते देखे हैं कि एक मिरेकल स्पर्श जब आपके लाइफ पे होता है वो किसी भी दिन हो सकता है। एनी डे कैन बी योर डे। आपका दिन हो सकता है कोई भी दिन। मैं परमेश्वर में चला हूं ना वफादारी से, और मुझे ये बात एक्सपीरियंस से भी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी मालूम है। एनी डे, किसी भी दिन। आपको मालूम नहीं होता कई बार वो दिन आपका है, मोस्टली नहीं। मुझे मालूम नहीं होता था कि ये दिन मेरा है। जस्ट इतना मालूम था कि बस जो कहा जा रहा है मैं वो कर रहा हूं, जो प्रेयर मुझे फॉलो करनी मैं वो कर रहा हूं। हालेलुया। ये जान डालने के लिए एक बार यीशु मसीह को ऊपर देख कर थैंक्स करो। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आज जब नाइट मीटिंग में आपको ये मालूम होना चाहिए, प्रोफेटिक मीटिंग में जो ब्रांचेस हैं, जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, बिना ऑयल प्रार्थना के आप नहीं जाएंगे। जब आप पे स्पर्श होगा, कुछ एंटर कर रहा है आज आपकी बॉडी के अंदर। जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही सिस्टर्स, उनको वो ऑयल अपने हाथ पे लेके पेट पे लगाना है। वो ऑयल हाथ पे लेके अपनी फाइल्स पे लगाना है। वो ऑयल हाथ पे लेके आपको अपने बच्चों पे लगाना है। बीमार जो बच्चे हैं उन पे अपना दाहिना हाथ रख के उस ऑयल से प्रार्थना करनी है। वॉलंटियर्स को बोलना है वो आपको ऑयल दें और आप अपने बच्चों पे प्रेयर करेंगे। जो टांगे नहीं चल रही, जो हाथ नहीं चल रहे, जो फाइनेंस नहीं चल रहा, सेम अनॉइंटिंग अगर वो लंग्स जिंदा कर सकती है, किसी का कैंसर खत्म कर सकती है, वही सेम अनॉइंटिंग आपके फाइनेंस को भी चंगा कर सकती है। वही सेम अनॉइंटिंग आपके पति की लाइफ को हील कर सकती है। वही सेम अनॉइंटिंग आपके बीमार शरीर को चंगा कर सकती है। आपको जस्ट जब आप पे प्रार्थना होती है, आपको जस्ट बिलीव करना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप में जाएंगे। इस गवाही के लिए थैंक्स कर दो एक बार परमेश्वर को। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं
मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मुसीबत में मोहकम किताबों में ना, तन्हाइयों में वो रहबर मेरा। मुसीबत में मोहकम किताबों में ना, तन्हाइयों में वो रहबर मेरा। जिंदगी का चश्मा यीशु मेरा, जीत का झंडा यीशु मेरा। जिंदगी का चश्मा यीशु मेरा, जीत का झंडा यीशु मेरा। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा खुदावंद कहता यही, मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। हाथों को उठाओ, ऑयल टीम ऑयल लेके अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाओ। यहोवा ये मुहैया करे, प्याला मेरा बरकतों से भरे। यहोवा ये मुहैया करे, प्याला मेरा बरकतों से भरे। आपके हाथ आज से बरकत से भर जाएं। हाथों को उठाओ दोनों हाथ।